Good morning, Melvin. Hey guys, thank you so much for tuning in again today. It really means a lot. I just wanted to acknowledge all the love and support that I've been getting so far. Today marks the last episode for this semester. I'm going to be back again next semester with some amazing topics. But for today, this is the last episode for this semester. So, to keep it a bit casual and keep it a bit fun, I got in conversation with these three amazing friends of mine. And they have a channel called Knees for Brains. I'm going to let them introduce themselves. Hi, guys. Thank you so much for joining me today. It is literally a pleasure to interview all of you. If you guys want to introduce yourselves, Taimur, if you want to go first. Yes, why not? मैं मान कदरदान, मेरा नाम है तैमूर और मैं काम करता हूँ, मैं बैंक में काम करता हूँ। मेरी एक छोटी सी बेटी है जिसका नाम मलाइका है। You go now. Cute. मेरा नाम I asked you to go. मैं अभी तक गया हूँ। मेरा नाम मोहम्मद है। 21 साल तक मुझे मोहम्मद कहते थे लोग। फिर मैं आया मेलबर्न में, बड़ा हुआ था इस्लामाबाद, पाकिस्तान, कदरदान, और फिर मैं आया मेलबर्न और वहाँ मुझे लोग कहते हैं अली, क्योंकि यहाँ जब मैं क्योंकि आप शुरू में आया था इंट्रोड्यूस तो अपने आप को अली के नाम से करते हैं। उसकी वजह ये थी कि जब मैं नया आया था तो I was surrounded by a lot of Asians and they found it easier saying Ali. तो मैंने कहा yeah, I like the ring to it and I'm both. Yeah. I Over like to the you. ring to it. Murad. So मेरा नाम है मुराद, I am 21 years old. अगले साल पता नहीं मेरा नाम शायद चेंज हो जाए, अभी तक तो यही है। और मैं भी इस्लामाबाद में बड़ा हूँ, कोइंसिडेंटली मैं मोहम्मद के साथ पढ़ा हूँ और अभी मैं क्योंकि हम भाई हैं और अभी No way. मैं सैन डिएगो में रहता हूँ और yes, that is it. ये सैन डिएगो वही है ना जो लाहौर से कोई 60 किलोमीटर दूर चीचावतनी के साथ है। आप सियालकोट का सोच रहे हैं, ये सुक्कर के पास है। ये बॉर्डर के उस पार भी सक्खर होता है। ब्रो सुक्कर होता है। सक्खर होता है, सुक्कर नहीं होता, सक्खर होता है। मेरी हिस्ट्री टीचर ने बताया था एक पर्शियन वर्ड से डिराइव्ड है, सुक्कर होता है। मैं जब सक्खर इजाद हुआ था मैं तब पैदा हुआ था। तुम सबसे बड़ा हो। This joke sucks. मैं एक बताऊं, मुझे लगता है कि sucks by सक्खर by the way. मुझे लगता है अमेरिका में ना एक सिटी होनी चाहिए सांता क्लॉज, ये मिस कर रहे हैं। Issues or the problems that we faced growing up in a South Asian culture. One of the problems is my parents literally shouting and talking right now as we do this call. And all the headphones in the were not working. But apart from that, what were the issues that you guys faced growing up in a South Asian culture or anything that you saw around you? So yeah, if you want to go first, Taimur. Yes, serious question ka, like, to be very honest, like growing up in Pakistan especially as a male, I don't think so I had any problems growing up. हम तो बहुत privileged लोग थे, शुक्र है। We were very privileged. सब कुछ था हमारे पास और ना मैं कभी बाहर जाने से कभी रोका गया, ना कभी लेट जाने से कभी रोका गया. So we were free to do anything we wanted. So I don't think so I had any problems, but like you can ask them if they had any. I don't think so. They will have a different answer though. Yeah, fair enough. I think the point that you put forward about being a man, and I think it's really important considering that women definitely go through a different journey. And yeah, thank you so much for putting that forward. Murad, what do you have to say? I think going off of what Taimur bhai said, कि being a man in Pakistan is very easy. आपको बहुत ज़्यादा freedom मिलती है, लेकिन मैं एक वो anecdote दे देता हूँ कि हमारी एक cousin है जिसको बहुत शौक है फुटबॉल खेलने का, और वो आई इस्लामाबाद हमारे पास. Nice. और हम सब भाई और cousins और सारे इकट्ठे जा रहे थे हम लेट नाइट फुटबॉल खेलने, और वो भी हमारे साथ जा रही थी, और उसकी अम्मी गेट तक भागती हुई आई और उन्होंने उसको कहा तुम किधर जा रही हो? उसने कहा बाकी सब भी जा रहे हैं, मुझे भी जाने दे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं वो लड़के हैं, तुम्हारा कोई काम नहीं है वहां जाने का. तो फिर लेकिन हम उसको ले गए थे, लेकिन वो तो हम बिट डीट है ना. बट हमें तो क्वेश्चन भी नहीं किया गया ना. हाँ एग्जैक्टली. जी I think yeah, that's really interesting to see, because it again brings the topic up of privilege and accessibility also in that terms. But yeah, what do you have to say, Ali?
यार, growing up as a middle child is not easy anywhere in the world, Yeah. especially Pakistan. क्योंकि मैं था बीच वाला बच्चा. मैं आपको एक एनेक्डोट देता हूँ, ये मैंने अभी सीखा है. और मेरे अब्बू के दोस्त थे, यूके से आए थे, ठीक है, पता होगा यूनाइटेड किंगडम यहीं है. तो वहां से वो आए थे और वो लाए थे हमारे लिए चॉकलेट्स और गिफ्ट्स और कपड़े वगैरह ना. तो हम टीवी रूम में बैठे, हम खानदान में 5 लोग हैं, ठीक है, अम्मी अब्बू हम 3 भाई. वो आए, उन्होंने अब्बू को दिया परफ्यूम. जाने दे. नहीं, I would love to know. अली कंटिन्यू. उन्होंने आपके अब्बू को इसके परफ्यूम पास दिया. अब्बू को दिया परफ्यूम. अम्मी के लिए वो शॉल लाए थे. और ये मुराद जो है छोटा भाई, उसको उन्होंने दिया था एक PS4 का रिमोट. जी. अहमद को बस जो मेरा रिमोट बड़ा दिया, भाई है, PS4 नहीं दिया. उसको सेल दे देते. वो आपको वो दे रहे थे, डिवाइस दे रहे थे, बट अब मोटिवेट तो आपने खुद ही करना ना अपने आप को. लाइफ लेसन भी दे दिया 55 था. minutes and 30 seconds हो गए. नहीं, स्टोरी खत्म होने वाली है, सुनने बड़ा अभी वो पंच लाइन आने वाली है. अच्छा, तो जी. इसके बाद था मेरी बारी, ठीक है. हम यूं बैठे हुए हैं, सारों को उसने दिए हैं और उसने मुझे दिया है जफ्फी. ये मिला था मुझे उस दिन बाहर के मुल्क से. तो ये जादू की मिली थी या खाली थी? नहीं, कोई मिल गया था. अच्छा, नहीं, वो तो मुन्ना भाई है. मुन्ना भाई नहीं, मिडिल भाई. Anyways. Fair enough. But I think अली आपके साथ काफी होता था क्या कि मुराद के लिए कोई कुछ लेके आता था, आपके बड़े भाई के लिए कोई कुछ लेके आता था, आपके लिए कोई कुछ नहीं लेके आता था, ऐसा काफी होता था? काफी हुआ. मैंने मैं कभी मीडिया पे ये बोला नहीं है, पर अब जिस तरह से जब से मुझे फेम हिट हुआ है, I started opening up more. लेकिन मैं एक पॉइंट पेश करना चाहूंगा कि because middle children don't get any attention, they can get away with anything. ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है. जो I object, my lord. एक सेकंड सर, let me present my argument. Objective बड़ा sustained. आपको किसने जज बनाया? नहीं, ऊपर. देखो, जो बड़ा भाई है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसने नाम तैमूर भाई कैन रिलेट टू दिस. जो छोटा बेटा है, उसको लाडला बनना है, उसको सबका फेवरेट, उसके चीख सबसे ज्यादा लोगों ने पकड़ने हैं. मिडिल चाइल्ड मलांग फिरे इधर उधर, जो मर्जी करे, जो मर्जी पढ़े, किसी को फर्क नहीं पड़ता. ब्रो, इससे ज्यादा फ्रीडम क्या चाहिए तुम्हें? आपके इसके एडजेक्टिव से आप अंदाजा लगा सकते हैं इसके preconceived notions about middle child syndrome. Wow, that was a long sentence. I'm so proud of myself. नहीं, मुराद ने अब इसकी टोन देखें जिसने इसने डिस्क्राइब किया मेरे बड़े भाई को, लीडर, अपने आप को लाडला, चीख से मतलब फिजिकल रेफरेंस दे दी एक एज वाइज चीज को. और मुझे क्या थी, सीरियस बात करना चाह रही है. नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं. Anything and everything जो मैंने कहा था. हमारे इर्द कोई ऐसी गलती नहीं करता. No, read in between the lines or hear in between the lines, like if this is a radio show. सही बात है. But आप because आप तीनों kind of साथ ही पले बड़े थे, what is the one thing जो आपने सबसे ज्यादा observe की बचपन में, like, or one thing which you were like कि ये तो यार हर बार at every festival or at every like family gathering this happens? That is a loaded question. ये बहुत, इसका मेरे पास बहुत आंसर है. मैंने जो सबसे ज्यादा नोटिस किया था कि आप जिस मर्जी शादी में चले जाओ, वहां पे कंप्लेन करने वाले इतने ज्यादा होते हैं. खाना नहीं ठीक बनया, कभी कोई ये कहता है ओ सानू स्टेज पे बुला के किसी ने तस्वीरें ही नहीं खींचियां. ये लाइक दैट्स द बिगेस्ट कंप्लेंट. सानू किसी पूछिया ही नहीं, हमें किसी ने पूछा ही नहीं, हमारी किसी ने तस्वीर ही नहीं खिंचवाई. ये आई थिंक इंडिया पाकिस्तान दोनों में होता है. जी डेफिनेटली. तो लाइक दैट्स द बिगेस्ट थिंग आई हैव नोटिस्ड. उसके अलावा बस आई थिंक ये मैंने तो ये नोटिस किया बचपन में जब से बड़े हुए हैं कि हर वक्त बड़ों को कंप्लेन करते हुए देखा. और अच्छा गो ऑन. मैंने जो पैटर्न ऑब्जर्व किया वो ये है कि हमारा जो स्पेशली मैंने उसमें डिफरेंस देखा था जब मैं ऑस्ट्रेलिया आया और फिर मैंने पाकिस्तान के बारे में सोचा. एंड द फेम हिट यू. तो पाकिस्तान में बैठ के ऑस्ट्रेलिया के बारे में सोचा. नहीं, अब ख्वाब देखना इंसान की फितरत है.
And the fame hit him. I am swamped. अच्छा नहीं तो वो ये था कि जब भी रेस्टोरेंट में खाना खाया ना उसके बाद मुझे पैसे पता जो है where this is going. देने वाली है ना कि कौन देगा कैसे होगा ये और जब हमारा फैमिली में से कोई घर से बाहर जाता था एक हमारी बात होती थी टीवी लाउंज के बाहर और फिर जब वो सी ऑफ करने जा रहे हैं तो एक दरवाजे पे 6 घंटे बाद और फिर जब गेट तक पहुंचे तब तक मैं 21 साल की उम्र हो गई थी एक्चुअली ये इस चीज के बारे में उजास और मैंने मेरे पहले रेडियो एपिसोड में बात की थी कि द साउथ एशियन बाय कि 4 घंटे हो गए हम बाय ही बोल रहे हैं अभी और हम लोग बोल रहे हैं कि अंदर आके बैठ के बात करना नहीं नहीं हमें जाना है लेकिन 3 घंटे वहां बाहर गेट पे रहेंगे हम सब सबसे इम्पोर्टेंट होता था जो मेहमान खाना बाकी का छोड़ के जाते थे जो उसके सामने चीजें रखते थे वो हमने खानी होती थी असल में हमें पता ही नहीं होता था कि ये सारी चीजें हमारे घर पे भी बनती हैं नहीं और एक और जो चीज मैंने काफी प्रोमिनेंट देखी है साउथ ईस्ट एशिया कि तुमने मुराद को फिर बोलने नहीं दिया नहीं बोले आपका हक है मिडिल यार वो ये है कि एक द आइडिया ऑफ जुगाड़ like jugaad is Sanskrit word driven from a term I don't know अगर आपको मुझे कैसे पता driven संस्कृत से ड्राइव होके आया था हाँ वो it means jug and art इसका मतलब है कि अगर आपने like if you have to go from point A to B right you have to wait for someone to tell you what to do what तुमने अपने से बनाया है What is this? This makes no ये तुमने इसके मीनिंग का जुगाड़ लगाया है देखा तुम्हें पता है मैंने इस सारे किस्से में ये जुगाड़ लगाया कि इस बंदे के पास अकल नहीं छोटों के साथ यही होता है बड़े वाले But Murad, what do you think? ओह अच्छा मेरी भी सुनी जाती अच्छा फैमिली गैदरिंग की बात हुई थी तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तो यही बताऊंगा कि मेरे एज ग्रुप के लोग जो थे चाहे शादी में जो मर्जी हो रहा हो कोई कंप्लेन कर रहा हो हमारी नजर सिर्फ होती थी बोतलों पे By bottles you mean Coke and Fanta yeah just be clear man Pepsi या Coke एग्जैक्टली हम रेस लगाते थे कौन सबसे ज्यादा पिएगा मैं लेकिन बचपन से इस सूप का शौकीन था और मैं तो बस विंटर वेडिंग्स का इंतजार करता था जैसी सूप आए गरम 5 प्याले मैं किसी के ऊपर फेंकूं नहीं ये आप पता नहीं कौन सी शादियों पे गए हैं वैसे में तो कि बाद में बोटियां भी खाई जा रही हैं और उसने ऑब्जर्वेशन पूछी थी एज अ चाइल्ड उसने सिर्फ गैदरिंग्स और शादी की नहीं पूछी थी कुछ और भी बता सकते हो फैमिली गैदरिंग्स तो फैमिली हमारी गैदरिंग शादी या फातिहा पे होती है नहीं वैसे एक और इतना डार्क साइड पे चला गया नहीं एक और मैं अगर आवाम सुनना चाह रही है जनता फॉर द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर वो एक मैंने ये देखा है यार मुझे भूल गया नहीं कोई नहीं आराम से सोच लीजिए कोई जल्दी की बात हमें कोई पूछ लेने दो कोई इंतजार तो नहीं कर रहा कोई टाइम कंस्ट्रेंट भी नहीं है अच्छी स्टोरी थी फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है टेक योर टाइम अच्छा विराज हाँ ये विराज ही करते रहो आ रहे मुझे वापस जी नहीं आपका इंतजार करते हैं खाला का घर है ओह हाँ यस आई गॉट इट जो मुराद ने बात की थी कि हमारे खानदान में होते हैं फातिहा या शादियों पे तो हमारी जो सोशल सेटिंग होती है ना वो भी काफी इस पे डिपेंडेंट होती है कि हमारे पास करने के लिए क्या क्या है और इस लिहाज से मैंने देखा है कि जो सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं वो एक सोशल सिचुएशन में आपस में ज्यादा बातें करेंगे क्योंकि हमें लाइक वी ग्रो अप not having much to do so what we did was talk to each other तो लाइक हम गाड़ी में बैठ के we will roam around we'll talk to each other खाना खाएंगे we'll talk to each other वैसी एक्टिविटी नहीं ज्यादा की जिसमें हम एक दूसरे के साथ मिलें और बातें ना करें क्योंकि सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट हम एक दूसरे के लिए लाइक we became each other's source of entertainment एक और भी चीज है कि अभी देखो कि बचपन से अभी तक हमारा पाकिस्तान में क्योंकि या इंडिया में भी क्योंकि हमारे एंटरटेनमेंट के आउटलेट्स इतने कम है कि हम जब इकट्ठे होते हैं तो खाने के लिए इकट्ठे होते हैं लाइक इफ समवन पासेस अवे तो खाना खाते हैं शादी पे खाना खाते हैं किसी की बर्थडे होती है खाना खाते हैं कोई पास होता है तो खाना खाते हैं तो हमारा जो पूरा कल्चर है इट्स बेसिकली सेलिब्रेशन
कुछ भी हो, we're always celebrating. And बिल्कुल I think food is like a very big part of that celebration. yeah In terms of even like, I 100%. think the amount of dishes South Asia has is like the most around the world. Like we have like this itni sari dishes and itne sare pakwan and some stuff like that. So yeah, कितनी सारी काफी सारी. इतनी दाल मखनी, सारी इतनी शाही सारी. पनीर, नान, सब कुछ. नहीं ये नान की वो कितनी किस्में आपने नोटिस किए? आप किसी एक खाने को पकड़ो, उसकी आगे से 20 और किस्में निकल आएंगी. जी, exactly. हाँ मैंने Exactly. इंटरोगेट किया जैसे था अपने नान को. हाँ लेकिन नान से नान की याद आगे आया, अदनान है यही जोक मारने लगा था मुराद. यही कहने वाला. लेकिन ये वैसे नान अच्छा लफ्ज है ऐसे. यार, ये काफी अच्छा. बोलो बोलो. यार ये अब कॉन्वर्सेशन नॉन सीरियस होती जा रही है. लेट्स गो बैक टू मुस्कान. नहीं, it's perfectly fine. Anything and everything is fine. Don't worry about it. मुस्कान is another naan. मुस्कान. वैसे आप लोगों का फेवरेट नान क्या कौन सा है? Garlic naan. मेरा है ओह गार्लिक. यार वैसे पता है ये जो कॉपी तो वो पता है, आराम आपने से pause सोच किया? रहे थे. नहीं असल में सोच रहे थे, वो आपके जवाब का इंतजार कर रहे थे कि मैं कॉपी कर लूं इसको. हमें मुस्कान से भी पूछना चाहिए उसका कौन सा फेवरेट है. मैंने तो बोला गार्लिक. उसी ने तो गार्लिक क्या गार्लिक. मुस्कान क्या आप तेरे का आंसर कॉपी कर रही हो? नहीं ये रजिस्टर plagiarism किया नहीं उसने. आपका क्या फेवरेट है? मुराद अली. मेरा प्लेन नान. वाओ, उड़ता है वो. इतना इसका बोट सन्नाटा, नान. इतना सन्नाटा. यार देखो Plain रोगनी क्या? नान जो है ना, रोगनी नान वो क्रॉसवर्ड पजल की तरह टूटता है, वो मुझे नहीं पसंद. उसमें आप That's प्रॉपर बुर्की नहीं बना सकते. मोहम्मद गार्लिक का बोट नान है. प्लेन नहीं नान मेरा चला उसका. मेरा मेरा फेवरेट है कोनन. वो निकलेडियन शो था. निकलोडियन पे कौन सा शो था? या केनन कोनन केविन कीनन कीनन एंड कैल. या कोनन ओब्रायन की बात कर रहे हो? कोनन भी है. नहीं इसको थोड़ी वो तो स्टैंड अप है. जी. मुझे पता है कोनन ओब्रायन का. स्टैंड अप I doubt it, but sure. हाँ उसके वो गोल गोल बाल है. उस हाँ उसके गोल रेड बाल कलर के बाल है. मुझे वो पसंद है, वो जो रोगनी नान नहीं है. उफ, वो सबसे वो मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि मुराद ने भी उसकी बेइज्जती की और इसको ये बहुत तंग होता अगर मैं बोलता मुझे रोगनी पसंद है. तो इसलिए मुझे पसंद है. नहीं चलो खैर जाने दो. Fair enough. But something which happens a lot in India, मुझे नहीं पता पाकिस्तान में होता है या नहीं, but आप बताओ. Something that happens in India a lot is कि जब भी शादी हो रही होती है, everyone has to like dress up better than the bride. And like everyone wants to like put up so much makeup and everyone is like full एकदम छम like उनके शक्ल पे ऐसा light है, तो light वापस आएगी, reflect हो रहा है सब. I don't know if that happens in Pakistan, but in India it's always like oh very छम and very extra stuff like that. So does that happen in Pakistan also? हाँ हमेशा. जी हमारे तो वहाँ पे जोक किया जाता है इस बारे में कि ये जब इन्होंने मेकअप करना होता है, ये ब्रश पकड़ता है पेंट वाला, शड़क और चले गए ऐसे. नहीं इसके इसी टॉपिक पे मैंने भी एक जोक सुना हुआ. वो ये था कि एक मौत का फरिश्ता ना एक बार जाता है एक घर में ना, नए शादी वाले घर में, और मौत का फरिश्ता जाता है और कमरे में जाता है जहाँ मियाँ बीवी होते हैं जो नए जिनकी शादी. जब तक स्टोरी खत्म होगी मुझे लगता है मौत का फरिश्ता मेरे पास आ जाएगा. Ali, I want to hear the story. Go on. स्टोरी नहीं है, जोक है. मतलब ये एक्सपेक्ट करना कि जोक है. मैं इसको छोटा करके सुना दूं अगर कहते हो तो. जी बोले. शादी वाला घर नहीं था वैसे. हाँ मियाँ बीवी वाला था. मियाँ बीवी वाला वैसे था कि एक औरत के पास मौत का फरिश्ता आता है और वो देख के जब वो उसको देखता है उसकी तरफ तो कहता है ये तो वो औरत ही नहीं थी जिसकी मैं जान लेने आया हूँ, और फिर वापस चला जाता. ये जोक था. हाँ. नहीं अगर मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी, आप मेरी बैकग्राउंड स्टोरी और इस जोक को आप कंबाइन करें तो टाइम अच्छी कंस्ट्रेंट है. नहीं आप बोलिए, आप टाइम की चिंता ना करिए, मैं एडिट में मुस्कान एडिट कर लेगी. जी वक्त ही तो है मेरे पास. सिमरन लाइन है, वक्त ही तो नहीं है मेरे पास, मैं था.
ये मैंने बनाई है। नैना नहीं, उसको बोलता है सैफ हाँ, अली खान। वक्त की तो नहीं है मेरे पास नैना, कल हूँ ना वो जब वो नहीं, शाहरुख नहीं, खान नहीं, बोलता वो है। शाहरुख खान हाँ। बोलता है सैफ अली खान को। मुस्कान क्या नहीं, समझे, नैना आपने को बॉलीवुड नहीं बोलता है। देखी, कब हमें नहीं बोलता पता। प्रीति जिंटा को बोलता है। अच्छा, हाँ, नैना तो उसका हाँ नाम हाँ भी हाँ तो। हाँ, वो फिर उसका नाम अब सैफ खाली अली जिंटा होना खान का चाहिए। नैना नहीं होता। नहीं, सैफ अली खान को बोलता है काश, काश मैं तुम्हारी जगह होता। याद है वो वाली लाइन? मुराद was a big fan of शाहरुख खान। मुराद Yes, जब yes, छोटा yes. था वो I'm रोता था कि I हम still शाहरुख am खान कुछ बोल। one of the biggest Shahrukh Khan Me fans. too. I'm Shahrukh an Khan Amir was my Khan fan. childhood. I wasn't much Shahrukh. I wasn't a big Shahrukh Khan fan. But यार एक what, कॉल कैंसिल what, करूँ। what Bollywood film is banned in Pakistan? No. जो क्या उसकी कह आई रही थी हो? बागबान, Can you ask नहीं again? बागबान नहीं, बजरंगी भाईजान के बाद जो आई थी एक। Asking कि कौन सी फिल्म्स बैन हुई थी? वो बैन हुई थी वो जो प्रोपेगेंडा सी थी उसकी, सैफ अली खान की थी, करीना कपूर के साथ, जिसमें एजेंट्स बनते हैं। एजेंट कौन सी थी? विनोद, वो बैन हुई थी ना, इसलिए आपको नहीं पता कौन सी थी। एजेंट विनोद, वो उसमें वो कैटरीना कैफ थी शायद उसमें। अच्छा, नहीं, एक इंटरेस्टिंग आपको फैक्ट बताऊं। चलो जी, आओ जी। Go on, Ali. नहीं, वो ये है कि एक इनकी मूवी आई थी बजरंगी भाईजान, which is जो आप सबने शायद देखी हो, इसमें सलमान खान और मतलब पाकिस्तान इंडिया की काफी इसमें दोस्ती दिखाई थी। उसी डायरेक्टर ने उसी महीने या 2 महीने बाद एक मूवी रिलीज की थी जो पाकिस्तान में बैन हो गई थी, क्योंकि which was about like spies or something और which was against पाकिस्तान। तो मतलब एक ही डायरेक्टर ने 2 मूवीज ऐसी बनाई थी एक महीने में, जो वो मुझे दूसरी वाली का नाम नहीं याद। मुझे वो फ्लॉप हुई थी, वैसे उसकी स्टोरी भी नहीं अच्छी थी शायद, वो इस वजह से। उसका नाम वो तो नहीं था, कबीर समथिंग? हाँ, कुछ ऐसे ही था। कबीर सिंह तो अभी आई है शायद हो, क्योंकि वो सेम डायरेक्टर है। ये मूवीज पता नहीं, वैसे आप बताएं क्यों बनाते हैं ये मूवीज जो अच्छी भी नहीं होती, बस निरा प्रोपेगेंडा। हाँ, जवाब दो मुस्कान। उस बेचारी को क्या पता। वी डिमांड। नहीं, आप जानते होंगे ना कि किस तरह के कोई आपके दोस्त देखते हैं ये मूवीज। ये मैं नहीं सोचता कौन ये देखता होगा। मेरे दोस्त तो अली है, वो तो नहीं देखते। अली मैं काफी मुझे मेरा आज एक दोस्त में अली सारे इवेंट्स अली प्लान करते थे एंड अली यूज्ड टू हैंड पिक ऑल बॉलीवुड मूवीज। क्या बात है आप लोगों की। वैसे आई वुड लाइक टू ऑफर यू माय कंडोलेंसेस क्योंकि इसकी पसंद नहीं अच्छी है। उफ, अली सॉरी कह रहा हूँ, मोहम्मद जो हमें मूवीज बताता है वो तो कानों को हाथ लगाते हैं। यार अगर मूवी देखनी है ना, मैं जो हाईली रिकमेंड करूंगा वो है सुपर डिलक्स। ये एक नेटफ्लिक्स इट्स अ रियली नाइस मूवी। ये कौन किसकी है? ये तमिल मूवी है, मुझे एक्ट्रेस का नहीं पता। अगर It's सबटाइटल्स ऑन about करना या transgender ज़बान community. सीखना है आपकी। इट्स अ रियली नाइस मूवी। इट्स लाइक वो लाइफ इन अ मेट्रो नहीं, डिफरेंट स्टोरीज कंबाइन होके एक दूसरे के साथ पैरेलली। लाइफ इन अ मेट्रो। मुस्कान, आपकी कौन सी है? अब तक की फेवरेट Parallelogram. बॉलीवुड मूवी कौन सी है आपकी? जब भी मैं ऑल टाइम। जब भी मेट। जब भी नाइस, गुड चॉइस। आई एम जजिंग यू राइट नाउ। आपको पता है मेरे अब्बू ने ना जिंदगी में कोई टोटल 4 बॉलीवुड मूवीज देखी होंगी, लेकिन जब उन्होंने जब भी मैं देखी तो उन्होंने पूरी मूवी देखी स्टार्ट टू फिनिश, और उन्होंने कहा इसको शुरू से लगाओ। उनको समझ नहीं आई थी। ये बहुत पुराना जोक है अभी, बट नहीं, सी सच नाइस मेरे मूवी। के बारे में मजाक ना करो। इट इज अ ग्रेट मूवी। मोहम्मद ने क्या वो जज करे, इसका मतलब है उसको वो एलएलबी वाली पसंद आई होगी। जॉली एलएलबी। यार वैसे अगर आप लॉयर मूवी देखना चाह रहे वैसे। हैं, एक मूवी है शाहिद, वो जरूर बहुत अच्छी है, देखना। बहुत अच्छी मैंने देखी हुई है। हम बोलते हैं ना, कोई हेल्प करो। बकवास। यार इसका कोई फास्ट फॉरवर्ड बटन इजाद करो। नहीं मुझे कोई हेल्प करो यार। आप आराम से बोलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं सुन रही हूँ, सब सुन रहे हैं। मेरा मसला ये है कि मेरा जुमला खत्म हो गया, मैं इन पे डिपेंडेंट था कि मुझे हेल्प करेंगे। देखिए मुस्कान, आप समझ रही हैं कि ये हम बुली कर रहे हैं, लेकिन ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। मुझे अगर इसका मतलब पता होता मैं ऑफेंडेड होता। नहीं, द थिंग इज मैं समझ रही हूँ, बट मेरे लिसनर्स भी समझेंगे ना, तो आई हैव टू डिपेंड। हाँ, ट्रू। लेकिन आपको हमारी बातों से पता लग रहा होगा कि बॉलीवुड का इवन के हमारे जोक से लेके हमारी जिंदगी के ऊपर कितना बड़ा असर है। हाँ, वो तो आई थिंक हर देसी हाउस होल्ड पे बॉलीवुड हाँ बिल्कुल, चाहे ना चाहे अनचाहे असर पड़ता ही है। मतलब इतना असर पड़ा था कि अली एक बार रात में बैठ के कटिंग्स कर रहे होते थे बॉलीवुड पिक्चर्स के।
असल बड़ी में मेहनत की है। हाँ और वो हाँ क्लब के मेंबर था मैं यूनी में। कमिटी में मैंने बताया वाओ, ना, अली रात को 3 बजे बैठ के क्या मेहनत बात है। वाह वैसे क्या की थी? नाइस। मैं भी तो रोता था जब शाहरुख खान का भी मजाक उड़ाता था। हाँ जो अपने पे ले आओ हाँ स्पॉटलाइट तो मैं मैं कहता मैं भी लड़ता था जो बंदा कोई शाहरुख खान के खिलाफ कुछ कह देता था। और मैं भी पता जब आमिर खान को कुछ कहते थे मैं भी कुछ कह ही देता था क्योंकि आप लोग भाई सारे कह तुम ही रहे इतने हैं। पैशनेट नहीं थे कभी। Yeah, my passion lied in the acting rather than the actors. And when the fame hit you, right? लेकिन मेरी तो अभी तक शायद यही फैंटेसी है कि एक दिन मैं शाहरुख खान की तरह हेलीकॉप्टर से उतरूंगा, मेरे जी कंधे पे एक बैग होगा, लेकिन तुम मैं गिर जाओगे। हाँ ये वैसे like बहुत Bollywood एनालिक is ख्याल also आपके। sorry to बाजियाशी interrupt you. दरवाजे के सामने कह रही होंगी, तुम्हें गालियां दे रही होंगी। बाजी आशी मतलब कौन जानता है बाजी आशी को? बाजी आशी फॉर एनी लिसनर्स मेरी अम्मी का हमारी ऑफिशियल अम्मी का। रजिस्टर्ड नेम है। फर्स्ट नेम नहीं, और तुम बाजी, लास्ट बीच नेम वाले हो, तुम्हें कुछ नहीं मिलता। हाँ, मिडिल चाइल्ड की कोई अम्मी नहीं होती। मिडिल चाइल्ड के हम भाई होते हैं। यार उनको नहीं समझ आ रहा रेफरेंस क्योंकि आप बिल्कुल पता है बात कर रहे हैं वो जुनैद की जैसी। याद है जुनैद जो हमारा वो, मैंने भी रैंडम रेफरेंस यूज किया, आप कह रहे थे, मुझे भी नहीं पता जुनैद कौन है। नहीं, असलम भाई याद नहीं, बॉलीवुड का गाना था असलम असलम भाई। हाँ भाई, असलम मेरे असलम भाई हाँ Yes. दुबई का सारी चश्मा, लिरिक्स याद चीन है की मुझे। चड्डी। हाँ या बहुत पुराना गाओ गाना मुस्कान था। गाओ, मुस्कान गाओ, पूरा गाओ। तैमूर नहीं, भाई नहीं पुराने रेडियो जमाने शो है, रेडियो शो उनको आपकी आवाज सुननी चाहिए। रेडियो शो है, ऐसा मेरा फटा हुआ गला नहीं सुनना है किसी को गाते हुए। चले हाँ ये भी तो बात उसकी अभी मोहम्मद की फटी हुई आवाज इतनी देर सुनी है, वो ठीक थी। है। उसको बहुत दर्द हंसी तो आई है इस हुआ बात। है, दर्द तो हुआ है। बट नहीं आई वैसे थिंक या गो ऑन नहीं बोलिए। यार हम दोनों एक ही बारे में क्यों बात मुस्कान स्टार्ट गो करते हैं? मुस्कान मसला गो। सर आप करो, मैं वैसे ही अपनी जोन में। नहीं मैं ये कह रही थी कि आई थिंक काफी चेंज भी आया। अगर हम बॉलीवुड को देखें तो काफी चेंज आया इन टर्म्स ऑफ लाइक पहले कैसे सेलिब्रिटीज वो वर्शिप्ड, लाइक शाहरुख खान, आमिर खान, दे वर लिटरली वर्शिप्ड। कट टू लाइक आजकल बॉलीवुड में नो वन इज वर्शिप्ड इन टर्म्स ऑफ लाइक कि बहुत अच्छा एक्टर्स हैं बट कोई वर्शिप जैसे फैन फॉलोइंग, एकदम मैड फैन फॉलोइंग है सलमान खान की कि कोई कुछ बोलता है तो सब ऐसे खड़े हो जाते हैं भाई के फैंस एंड स्टफ। ऐसा कोई मैड फॉलोइंग आजकल किसी भी एक्टर का नहीं है। So yeah, आई think, थिंक इसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा वो करती है, रोल प्ले करती है। जैसे शाहरुख खान की अगर देखो तो 95 से लेके 2006 अंटिल वीर ज़ारा, इट वाज हिट आफ्टर अनदर हिट आफ्टर अनदर हिट। और ये व्हाट सब सलमान बहुत खान होती का है। उसके बाद से पीरियड शुरू हुआ था। जी, I believe एक्चुअली मेरा ओपिनियन इस पे ये है कि over the last few years ये बॉलीवुड की जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इतनी एक्सपैंड कर गई है कि अब एक्टर्स बहुत ज्यादा आ गए हैं। पहले तो ये था हाँ, कि ट्रू। महीने में एक मूवी आती थी और सबको पता था कि शाहरुख खान की मूवी आ रही है, सलमान खान की मूवी। दैट्स ट्रू। अब हर वीकेंड 4 मूवियां आ रही होती हैं और nobody cares anymore क्योंकि एक्सक्लूसिविटी नहीं रही अब। I मेरी बारी है बोलने की। 6 बार बोल चुका हूँ। I believe, I think, कितना मानूं कितना सोचूं। बोलो। नहीं तो मैं कहना चाह रहा था कि बोले राम गोपाल यादव बोले। राम गोपाल वर्मा। वो नहीं, तो मैं- फिर अक्लमंद है, ये राम गोपाल यादव है जो कॉमेडियन है। नहीं मैं मुराद से एग्री करता हूँ कि इस बार जो मीडिया आउटलेट्स हैं उसकी वजह से आप बात करिए ना वर्शिपिंग की। वर्शिपिंग के लिए बहुत एसेंशियल ये है कि हमें उनके बारे में कुछ ना पता हो, फिर उसके बारे में हमें लाइक ना पता हो उतना हम उनके बारे में लाइक वील थिंक मोर आइडियली ऑफ देम। Yeah. अभी इतनी ज्यादा चीजें हमें हर एक्टर के बारे में पता है तो लाइक वी सीन हिम डू लाइक नॉर्मल स्टफ, Yeah. सो वी नो ही इज अ नॉर्मल गाय इन द एंड। Yeah. लाइक तो वो वर्शिपिंग सेंस नहीं आती जो। दैट्स माय पॉव मीज पॉइंट ऑफ व्यू। But when the I fame think hits all the you, guys how know are you what going to pop deal with means. it? What about the girls, man? They don't know. But I think it makes a lot of sense in terms of like the बच्चा रो रहा है paparazzi and everything. Yeah. पापा को वो बच्चा भी वो ही कह रहा है। नहीं नहीं पीछे यार, से बच्चे की रोने की बात है। बच्चा रोता है तो फिर पापा नाराज हो जाता है। ओ वैसे लाइक ऑनेस्टली एक और मैंने ये काफी कोइंसिडेंस है कि आप लोगों ने इस बारे में बात की है क्योंकि मैंने एक फैक्ट
जानना है। आपको पता है कि जो बच्चे होते हैं वो हर कल्चर में मामा और पापा या एम और पी इतना क्यों इस्तेमाल करते हैं, लाइक व्हेन दे रेफरिंग टू द पेरेंट्स? आई एम लूजिंग द विल टू लिव। इसका अगर जवाब चाहते हो नहीं चाहते? जी बताएं। जी बहुत जरूरी है, बताएं। नहीं, क्योंकि लाइक एज अ किड ना, आप जब व्हेन यू से एम और पी, लाइक इट्स द इजीएस्ट मूवमेंट फॉर योर टंग एंड लिप्स। लेकिन मैं और जब तो आप बोलेंगे अब्बू कहता हूँ। आर, हाँ, अब्बू, उसमें तो और पी, अम्मी को अब्बू में पी नहीं आता, उस पे मुद्दे पे आओ ना। कौन से लफ्ज है? कौन से लफ्ज है? मामा पापा, मोहम्मद मापिट, जस्ट मापिट प्लीज। मोहम्मद प्लीज 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 मापिट। प्लीज, माफी। मैं स्टॉप नहीं कह सकता इसलिए मापिट। नहीं, वैसे अगर आप अगर देखा जाएगा, यू हैव टू चैलेंज योरसेल्फ मोर। आप बहुत इजी वर्ड्स यूज करें, एम और पी इजी, आर यूज करें, लाइक फॉर राम गोपाल वर्मा प्लीज। ये अगला सवाल मेरा मुस्कान आपके लिए है। हाँ जी, ये आपके अगला सवाल पूछना चाहेंगे? ये मेरा सवाल। जी बिल्कुल। Something which I have experienced in India growing up is how all the communities are very close knit. देसी जो communities होती हैं सारी बहुत close knit होती है in terms of like कोई भी issue होता है family में या कोई भी problem होती है, सब आ जाते हैं एक दूसरे के घर पे solve करने के लिए, सब एक दूसरे के मामले में ऐसे फड्डे अड़ाते हैं. Everyone wants to know everything about each other. So I was just thinking, how good is it for like people's mental health? Like, is it something कि हाँ हमें चाहिए कि सब हमारे फड्डे में टांग अड़ाए, सब आए, या हमें actually चाहिए कि हम खुद चीजें solve करें, या कि हाँ अच्छा लगता है कि सब आसपास हों, kind of thing, या नहीं बिल्कुल. So what do you guys have to say about that? I have so much to say. yes, go me on. too. I'll let the Murbai go first. क्योंकि मुझे नजर आ रहा है उनको बहुत जोर से आई हुई है। हाँ, लेकिन अभी मैं कैमरा ऑन है तो अभी मैं कर नहीं सकता। मुरभाई रेडियो शो है, तो पता है आप कॉलर शो तो ठीक है, नहीं वो देख सकते हैं। अच्छा यार, इसके एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। एक जो कम्युनिटी सिस्टम होता है, और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि हमारे मुल्क में या हमारी कम्युनिटीज में मेंटल हेल्थ केसेस जो हैं वो कदरे कम होते हैं। इसी वजह से होते हैं क्योंकि इतनी क्लोज नेट होती हैं, इंटरफेरेंस इतनी ज्यादा होती है कि उनको पता चल जाता है कि इस बंदे को क्या मसला है, इस बंदे को क्या इश्यूज है, तो वो उसका फिर, क्योंकि इंटरफेरेंस करने की इतनी आदत है, उसका हल निकालने की कोशिश करते हैं। बट यही चीज इसका डिसएडवांटेज भी है कि जो नहीं भी आपको जानते, मोहल्ले की आंटियां हो गई, आपके रिश्तेदार हो गए, वो भी आपको फिर हर चीज में पाकिस्तान में कहते हैं इसको उंगली करते हैं। इट्स नॉट अ बैड थिंग, लेकिन वो होता है कि इंटरफेरेंस इतनी ज्यादा होती है। बट ये दोनों चीजें हैं। आप पता नहीं मुराद अपनी 21 साल की जिंदगी में उसने क्या सोचा है अभी तक। तैमूर भाई यार, मुझे तो लगता है कि ये एक बहुत बड़ा मसला भी है और बुरी चीज भी है। इस मसला ऐसे कि अगर किसी पे बुरा वक्त आ रहा हो ना, किसी की बुरी खबर चल रही हो, तो सब इतनी बातें करते हैं मतलब। लेकिन इसका फायदा यह है कि जब कोई अच्छा वक्त आए तो फिर ओहो। और मुझे तो पाकिस्तान के हर कोने से कॉल्स आ रही हैं, मिठाइयाँ आ रही हैं, लोग मिलने आ रहे हैं। और फिर इस फैमिली में इतना लाइक बच्चा कैसे पैदा हो गया? मैं तो नहीं जानता। और फिर जब मेरे A-levels में ग्रेड थोड़े से डिप हुए, तो सोचें पाकिस्तान के कोने से लोग आए मेरी बेइज्जती करने, जिनका कोई लेना देना भी नहीं है मेरे से। शर्म तो आनी चाहिए। चलो अब मोहम्मद को बोल लेने दो। यार मुझे ये मैंने एहसास मुझे इस चीज का हुआ है कि जब मैं आया था बाहर के मुल्क, और मैंने ये रियलाइज किया कि जब हम यहाँ जो अपने जो भी रिश्ते होते हैं, जो दोस्त हो गए, दोस्त बनाते हो आप यहाँ, वो it is always based on doing something with them. But like when you're back home, you always have people who exist, like not because you're doing something with them, they are just there, you know, like you have that
like the space to do nothing with someone, which like can be very healthy for your mental health because you don't feel the need to always be like do something with people in order for it to have meaning. That's the most serious I've been this relationship. Plato हो गया ये Socrates हो गया boy. I think मैं खुद impress हो गया. I think the lack of personal space can be a good thing क्योंकि आपको वो invasive thoughts नहीं आते जब जो आपको अकेलेपन में आते हैं. अगर आपको कोई मसला हो तो आपके साथ आपका नल्ला दोस्त होता है जिसको आप बता देते हो. मलंग भाई भी बोल दो. हाँ, तो अगर आपको अकेले हो तो आपको होता है यार मैं किसको अपने मसले बताऊं. ये है कि you always have someone to talk to, which can be a good thing. और लेकिन that also means there's always someone to talk to you जिसकी आपको सुननी पड़ती है. Yeah, I think that makes a lot of sense. But yeah, just going back to what Ali said, I think it's a really nice feeling just to have someone just being there for you, if that makes sense. Like, sometimes it's very exhausting to put effort in every single relationship that you have because her relationship may kuch amount of effort chata hai. So I feel like it's really nice just to have someone just there. So yeah, I think that's a really nice point by all of you. I am really impressed by this maturity that has been put forward. कभी-कभार आ जाती है. Yeah, but जब मुझे आई थी तो मेरे का था रेडियो है. तैमूर भाई कॉलर शर्ट आपने जो डाली है ना उससे मेच्योरिटी नहीं आई. मैंने डाली नहीं है, मैंने पहनी है पहली बार. नहीं मेच्योरिटी आई थी यार लेकिन आपको पता है एक जो है ना साउथ एशियन फैमिलीज का और रिलेशनशिप्स का कि दे डोंट आस्क फॉर एनीथिंग इन रिटर्न. और ये बात मुझे बड़ी हिट की थी कि अमेरिका में देयर इज ऑलवेज अ गिव एंड टेक. क्योंकि मैं यहाँ पे जब हर बंदे को कुछ आपके, लेकिन मैं जब आया ना तो एक पाकिस्तानी अंकल थे जो अब्बू ने कहा उनसे मिलो. वो सबके एक होते हैं, एक अंकल हो तो हर शहर में होता है आपका. एग्जैक्टली. तो शहर में दुनिया के कोने में आ गया, इधर भी एक अंकल निकल है. तो अब्बू ने कहा उनसे उन्होंने मिलके बोला ये लेवल ग्रेट बात क्या है तुमने ये लेवल में क्यों नहीं किया. अच्छा तो मैंने सोचा कि अंकल रहते थे एलए में और मैं था सैन डिएगो में. तो मैंने कहा चलो मैं अपना वीकेंड उनके पास गुजारता हूँ. तो मैं उनके पास गया. सोचो अंकल ने वो अपना वीकेंड अपनी जॉब से ऑफ ले लिया, छुट्टी ले ली. और वो मैंने तो सोचा था उनके पास ट्रेन लेके जाऊंगा, वो गाड़ी चला के सैन डिएगो आए मुझे पिक करने, मुझे एलए लेके गए, पूरा दिन एलए घुमाया. मतलब अंकल और मेरा क्या है बीच में मिलता है कुछ भी नहीं. बस उनको यही था कि मैं तुम्हें घुमा रहा हूँ तो मैं बस लेके जा रहा हूँ. बड़े वेले अंकल थे जो तुम्हें ला में पिलाते रहे. और फिर मैं उनके घर गया और उन्होंने मेरे लिए यार तुम्हें पता है मैंने ला का है पता है लाख सी और फिर LA ला. ओके समझ आ गई थी आगे. फिर आपने फिर से बोल दे, वैसे मुझे भूल गया फिर से. मोहम्मद ने अभी तक सिर्फ M और P सीखा है ना, उसको सिखा दे. ओए ला शट अप. मैं स्पेनिश भी सीखा. Anyone in Melbourne, your father told me because you live from the same family, right? Yeah, we met. But ये हो गया था कि मैंने यहाँ इतना वक्त गुजार गया कि because I became the contact जिससे बाकी अंकल के बच्चे आके मिलते थे. तो एक बार हुआ था, एक दो आए थे बॉयज मिले मुझसे. हमने वही बैठ के, ये होता था कि यंग थे, मैं भी यंग था. मैं अंकल से नहीं मिला अभी तक. अंकल से फोन पे बात हुई है. अंकल ने बस यही बोला कि मेहनत करो. मैंने कहा इसके लिए तो मैं अब्बू को कॉल कर लेता. ये वो भी बोलते हैं. And then the fame hits you. But no, fair enough. So yeah, I think that's nice, good. Thank you. Did it ourselves. But something which I think is very interesting about South Asia is how like kitne bhi different religions and kitne bhi different parts, and we all have the same culture when it comes to like even I like recently got to know कि पाकिस्तान में एक आपका निकाह होता है और एक शादी होती है. Like they're two different things. अपन निकाह के बाद निकाह होता है. अच्छा. नहीं, but I was just saying building on like how cultures are similar in terms of like कि 50 दिन की शादियां चल रही हैं. पहले हल्दी मेहंदी and everything is happening. ये वही थे जिस पे गए थे.
पाकिस्तान में जैसे होता है कि पहले होता है, हमारे यहाँ पे होता है कि पहले होती है मंगनी नहीं शादी मुलाकात की से बात करो ना, शादी की से अच्छा। बात करो। मेहंदी, फेसबुक पे ऐड मेहंदी से पहले होती है जो उसको क्या कहते निकाह, हैं, निकाह नहीं यार, वो जो हल्दी मेहंदी लगाते से हैं पहले जिसमें, शादी मेहंदी होती में है। हम छेबर हल्दी मेहंदी जिसमें बोलते हैं। लगाते हल्दी, हैं, ओ उसको कहते हैं ढोलकी, ढोलकी, माइयों माइयो, माइयो। हमारी वैसे पहले ढोलकियां होती हैं जिसमें हम लोग डांस वगैरह सीखते हैं, वो 4-5 दिन चलती हैं। संगीत, हमारा संगीत या हाँ, संगीत जिसको कहते हैं आप, बिल्कुल। उसके बाद हमारी माई होती है जिसपे लड़के लड़की को हल्दी लगती है। उसके बाद मेहंदी होती है जिसपे डांसर्स जो प्रिपेयर होते हैं वो करते हैं। इट्स लाइक अ कंपटीशन बिटवीन, यू नो, और दोनों ही अच्छे नहीं होते। फिर होती है हमारी बारात होती है जिसपे हमारा निकाह होता है, और कई लोग पहले कर लेते हैं निकाह, लेकिन फिर बारात के बाद फिर वलीमा होता है। बारात के बाद रुखसती भी होती है उसी दिन। रुखसती का मतलब होता है जो बीवी होती है जब वो लड़की जो होती है वो कहती है शुक्र है जान छुट्टी। और रोते हैं सारे। बीवी कहती है चंगा फिर, और फिर वो 5 मिनट उधर रुकती है, फिर वो गेट पे जाती है, कहती है चंगा फिर। नहीं, वो और वो बीवी गाड़ी में बैठने वाली होती है अपने मियाँ के साथ, फिर एकदम से उसको अंकल रोकता है और कहते हैं तुम्हारे एलियस में क्या ग्रेड आए। और वो कहती है, अंकल कहते हैं when the fame hits me. But do you guys want to talk about your channel? I think that would be something really interesting to tell people, because I think it's आपका जो आप IGTV videos डालते हैं. आप बताओ ना थोड़ा सा उनके बारे में। जी, I personally speaking, I actually watch all of your IGTV videos and they are really good. And मैं मोहम्मद के मैसेज करने से पहले देख लेती हूँ, और उसके बाद मोहम्मद मैसेज करके मुझे बोलते हैं कैसा लगा, और फिर मैं बोलती हूँ कि बहुत ही अच्छा था। पहले तो इसको थैंक यू कहना चाहिए, पहले तो थैंक यू कहना चाहिए। और बहुत हिम्मत है आपकी देखने की। It requires a lot of patience. मेरे को लास्ट वाला बहुत ही अच्छा लगा। नहीं, लास्ट वाला नहीं, लास्ट वाला जो वो प्रेरणा बजाज के बारे में आप बात कर रहे हैं, बहुत ही फैक्चुअली इनकरेक्ट था। मैं इतना बताना चाहती हूँ, बहुत सारी चीजें आपने गलत मेंशन की। नहीं, प्रफुल्ल ने डायरेक्ट किया था खिचड़ी। नहीं, प्रफुल्ल ने नहीं किया था, जो वो हंसा का भाई था ना, उसने किया था। या उसने अच्छा अपनी तरफ से उसने प्रफुल्ल बन के नकल की है, लेकिन ये लोग रेडियो पे नहीं देख सकते। नहीं, प्रफुल्ल नहीं है, वो है हंसा का भाई। हाँ, हंसा का भाई, एग्जैक्टली। कानों के साथ हाथ लेके जाता था पीछे। हाँ, तो फैक्ट मेरे को बहुत ही, मतलब आई वाज वाचिंग एंड इट वाज सच अ गुड, आई थिंक ऑल योर IGTV वीडियोस आर सो गुड। तो है क्या ये चैनल, है किसके बारे में? नहीं, कुछ बताएं ना थोड़ा सा आप। मुराद, would you like to answer that? नहीं, आप बताएं। I think you were rudely interrupted. I'll give you the floor. अच्छा, I think I'll take over. नहीं मुराद, वापस तो वो बताएगी अभी। अच्छा जी, ये तो फ्लोर के साथ हम पास द पिलो खेल रहे हैं। The channel is about 3 guys just having a chat about random things which are factually incorrect. Yes, that's but humorly correct. But the beauty is we never claim to be factually correct. Yeah, if you read our description says 3 guys who know nothing about, yeah, I know that. Nothing about, yeah. I know that. I think it's really funny. Yeah. Or yes, we are called Knees for Brains. Yes. You can check us out on IGTV or YouTube if you want to waste some precious time. And I hope the fame hits us. Sorry? Every view you guys give us, one kid in Africa blinks his eyes. Every view we get, the closer we get to the fame hitting us. Yes. Every view we get, okay, every view we get, we will view the view. जैसे कहते हैं कतरे कतरे से दरिया बनता है, व्यू से फेम बनता है। जी, बात बिल्कुल दरअसल की, आप शायर तो नहीं, पर आपकी बात सुन के मैं बिल्कुल भी मैं शायर तो नहीं But do you guys consider yourselves as YouTubers or as IGTVers? I actually don't consider myself. I will talk for them because why not? We consider ourselves as soldiers who are fighting this war against the authoritarian relation, government that is overcoming the world order. I think we should cut him off. Like cover drive. लेकिन तैमूर भाई, आपको what do you consider us? Yeah.
यार, like to be honest, we're just having fun. Yeah. We're just talking about like random stuff and just having fun. And Oh, यार इसको छोटा भी बनाओ, मैंने इसका गाल इतना शोना मोना जवाब दिया आपने. इतना प्यार है दाढ़ी सारे मैंने दाढ़ी आ माफ जाएगी किया. हाथ में. hey, but I think it's really important to have conversations like that because everyone here is like having really serious conversations, and I think a bit of fun doesn't hurt anyone. So yeah, and I'm really. That rhymed. But Sorry. the thing which I have to say about your IGTV videos is, why don't you guys make it a bit longer? Why is it only like 15-20 minutes? Why isn't like it? We faced a lot of backlash. Yeah. Backlash नहीं, I People think slept through our videos. Like, I think it's Backlash जैसे was- जैसे Yeah. जैसे जैसे हम वीडियोस बनाते गए थे ना, तो हमें खुद रियलाइज हो रहा था कि लोगों का अटेंशन स्पैन अब शायद उतना नहीं है जितना पहले हुआ करता था. तो स्पेशली ऑन लाइक इंस्टाग्राम या यूट्यूब, Yeah. क्योंकि अभी हमारी फॉलोइंग भी इतनी नहीं है, हमारे हार्डली लाइक वी हैव 100 फॉलोअर्स भी नहीं है अभी तो. Yeah. तो I follow you. यस, नहीं, मैं कल गया था, 3 familiar. बंदे मेरे पीछे आ गए थे. मैंने कहा क्या कर रहे हो, कहते हैं फॉलो कर रहे हैं. मैंने कहा यार इंस्टाग्राम यार लेकिन आई थिंक मसला ये है कि हमारा कंटेंट जो है ना, हम बहुत लेजी हैं. हम कोई जंप हाँ. कट्स नहीं करते, कोई एडिटिंग. और आजकल हमारा अटेंशन स्पैन इतना छोटा है कि आप 3 बंदों को ना बात करते हुए 5 मिनट से 10 मिनट से ज्यादा नहीं सुन सकते. That's why हम- we thought. और हमारा और- इतना वो रॉ कंटेंट है, वो सही कह रहे हैं कि एडिटिंग इतनी कम है उसके हाँ. अंदर, और जी. मतलब कि मिनिमम होती है, और हमारा कोई ये होता है कि फोकस टॉपिक भी नहीं होता, प्लस हमारा कोई प्रेपरेशन भी इतनी नहीं होती. हम कॉल से 10 मिनट पहले करते हैं. लाइक दिस जिस इज तरह हमने इस रेडियो के लिए मैं मुराद ने पूरी रात जागे रहे हैं. यार कैन यू बिलीव कि जी जी बिल्कुल. अच्छा, एक अगर आप लोगों ने वो सुनना है ना, यार गाना बताने में क्यों इतनी बैक स्टोरी ले रहे हो? बता दो बस गाना. कसम से I really wanted to know the backstory. Go on. नहीं, ये आपको- गाने को लोड करके थोड़ी बताना है, बस बता दो. नहीं, इस गाने के पीछे मैं थोड़ा सा मैंने कहा आपको वो बता दूं कि जी, किस हुक्म मोड में Oh my आप God. महसूस कर रहे हो अपने आप को, तब ये सुन But सकते then हो. that's it. The first time I met Ali ना, अली के आगे के बस इतने से बाल येलो कलर के थे. हाँ, एक स्टेज आई थी. and I judged him so much, like another level. क्या सोचा था मेरे बारे में? I thought you would be very bad. Like you'll be someone who would be like very rude and stuff like that. Wow. अच्छा, बात ना करो मेरे से. Because Ali ने पता है हमारी मीटिंग थी, अली आए and वो बस अपने फोन पे लगे थे पूरी मीटिंग में. Wow. मुराद से बात करते इस रेडियो शो के बारे में. Long distance relationship था हमारा. नहीं. But yeah, आप बता रहे थे कोई गाना अली? जी. हाँ, गाने का नाम है ऐसे कैसे. मैंने कभी नहीं सुना ये गाना. ये गाना है ताहा जी का, लाइक ताहा और आगे जी कैपिटल. ये गाना ऐसा कौन सा गाना जो मैंने नहीं सुना? उर्दू रैप है. ऐसे कैसे हो गया? ये कौन सा? अच्छा, अगर सब सजेशंस दे रहे हैं तो मैं भी दे देता हूँ. आई डोंट नो, आपदा परवीन का ढूंढोगे अगर. That is my suggestion. But yeah, thank you so much guys for doing this. It really means a lot. And I know सबकी times बहुत अभी difficult ये चल में रही नहीं है. आएगा. That's true. मैंने आज ही ब्रेक लिया कोई 3 साल की जॉब से. 3 साल की ब्रेक लिए इस एक वीडियो के लिए. नहीं, but honestly, अंकल का बेटा आ रहा था ना, उसको कराना. honestly, like I feel like सबके पास कुछ ना कुछ important काम होता है करने के लिए. And thank you so much for taking time out. ये also मेरा इस semester का last radio show होने वाला है. उसके बाद next semester start होगा. So I'm ending with you guys. Wow. you हमें saved थैंक यू आपको कहना चाहिए कि आपने हमें सेलेक्ट हमें किया. बुलाया. Thank you, मैंने Muskan. बुलाया. You were very hospitable. Thank you for saving the worst for last. Yeah, It means a lot. नहीं, ऐसी बात नहीं. It's like the और cherry at the उसको- bottom. और इसको मुस्कान, यू शुड डू लाइक अ जूम कॉल शो ताकि लोग आपको देख भी सकें. हम ऐसे दूसरे को देखते हुए हंसता देखते हुए भी और मजा आता है उससे. Like, नहीं, आई गिव अ कॉम्प्लीमेंट. उसकी लोग मुस्कान देखेंगे. मुस्कान है उसका नाम, यू नो. I think मोहम्मद भी यही पॉइंट मारा था. मोहम्मद का पॉइंट तुम्हें पता है ना, अगले दिन आएगा.
conversation towards the end. I just want to thank all three of you again. Thank you so much, guys, for coming on the show. Thank you so much for taking time out for me. It really means a lot. Ending this episode on a really nice note, I would like to play the song which was requested by Murad. I hope you enjoyed this soulful, guys. And do check out their Instagram handle called Knees for Brains. They really have amazing stuff out there. And having said that, this is my last episode for this semester. So until then, see you. Bye.